देखिए IAS examination is not so tough. IAS examination in any phase, either it is pre or mains or interview, it is not so hard, it is not so tough. Why? Because if your strategy and methodology is up to the mark, in that situation it is very easy, it is halwa. But once your strategy and methodology is not as good as required by the UPSC, in that situations you will be failed. You will be failed because what is the strategy and what is the methodology you are missing in your preparation. Mind my statement कि this is not required to read, to study as much as book as recommended by anybody, other people. That does not make any sense, because if your strategy is not up to the mark which is required by the UPSC, in that situations all the curriculum, all the textbook and course material is in vain, bekar hai. So there is only one strategy which I am suggesting, that you should categorize your study into three parts. First will be taken care by you, that is the textbook or whatever the study material prevails, and the second will be taken care by you and me by the jointly efforts, but the third will only taken care by me by this coaching, because the third sector, which is tough, more than tough, on the basis of that there is so much halla gulla is going on, that is the target of circle number 3, stage number 3. You will have to focus on that third circle, where I am responsible to pull you, not yourself you. So to say that the 20% question cannot be solved by anybody, even UPSC chairman and member, it does not make any sense. This is foolish sentence. The person who is not aware about the 20%, they always try to say that अरे 20% तो किसी को भी नहीं आता भाई, तो ये कह के वो अपनी जान बचा लेता है, क्योंकि उसको खुद नहीं आता इसलिए वो ये भाषा बोलता है, समझ गए ना आप। वो 20% पे हम खींच के ले चलेंगे आपको, तो 20% पे जब वी पुल यू फॉर 20%, देन इट इज सर्टेनली यू विल बी अचीव एटलीस्ट 15%, 10%. But once you are demarcating that line कि no 20% is not so important, not so easy, and you leave that area, it means कि you are misleading yourself, है ना भाई। मेरा कहने का मतलब है कि if you are pulling yourself in that 20%, then you can at least achieve 5%, 2%, 1% you can achieve ना, but not starting to go into deep into that 20% section. It means you are making yourself fool. Are you right? Am I right? Are you getting my point? कि जब ये कह के छोड़ देना कि 20% किसी को नहीं आता, इट मीन्स कि वो 20% छोड़ने का मतलब आप जीरो हो गए ना। और इफ यू आर ट्राइंग टू कैच दैट 20%, इट मीन्स कि यू कैन सर्टेनली अचीव एटलीस्ट 5-10%, not 20%, then that 5 to 10% will make difference for your selection at all. ठीक है ना। तो गालिब का वो शेर जो है हमेशा याद रहे कि उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो 20% को आपको अपने चेहरे से हटाइए, दूसरे के चेहरे पे पुती हुई है तो उसे ढके रहने दीजिए, है ना। So this is the background of a strategy and methodology, how to win the match, how to win the UPSC by the proper guidance, proper strategy and proper methodology. Strategy उतना ही जरूरी है, methodology उतना ही जरूरी है, ठीक है। Okay, good. Now this class is meant for GS2, UPSC GS2 polity, Indian polity, governance and international relation, and it is covered both the segment,
preliminary examination as well as mains examination, and question session is derived on the basis of that 20% mostly, not 100%, but that 20% mostly we are. Yesterday I put the questions, some questions in the group, and group is, उसको दिख नहीं रहा है, कह रही है नहीं, वो लिख रही है लड़की की, द लाइव क्लास इज नॉट येट स्टार्टेड, विल यू कंडक्ट इट टुडे? तो उसको कुछ बताना पड़ेगा ना, उसको फ़ोन कर दो, फ़ोन कर दो उसे। अच्छा ठीक है, मिल गया उसे, गुड गुड। अच्छा उसकी, उसका टेक्स्ट मैसेज आ सकता है ना? ओके गुड। हाँ, so then after that background, how to start preparation for UPSC to crack in a one attempt, in a zero attempt, that is a strategy and methodology, nothing else. How to read, how much you have to read, that will be the taken care. Otherwise, if you are indulging yourself in the unnecessary curriculum, then you will be in the problematic area. Like I have already told you that the world history is not required to be read unless until your optional is history. Second thing, I have told the 543 after birth of Paigambar Sahab, right from 543 to 1757 there is no need to read the history. थोड़ा बहुत आप यूं ही कर्सरी तौर से पढ़ लें, दैट इज अनदर थिंग, बट देर इज नो नीड टू वेस्ट द टाइम इन दैट area, because only 1, 2, 3 questions always, since 25 years I am looking that only 1, 2 और 3 questions ही आते हैं प्रीलिमिनरी में। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ 97 से लेके आज तक का। बट nobody teach you कि this wastage, this energy not to be wasted on the medieval history and all that. Okay, so now the regular classes, that is GS2 polity, and the question is differentiate between dominion state, protective state, colonial and sovereign state. That is very common terminology, nothing so much complex, but if you are not aware then it is again complex. If you are not known that terminology, then again you are feeling that it is very tougher. तो डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि डोमिनियन स्टेट रेफर्स टू ए फॉर्मर कॉलोनी दैट हैज गेन्ड इंडिपेंडेंस बट स्टिल हैज अ स्ट्रॉन्ग टाइज टू द कंट्री दैट प्रीवियसली रूल्ड इट. इट मीन्स डोमिनियन मीन्स द कंट्री विच इज अंडर इन्फ्लुएंस, अंडर अथॉरिटी ऑफ समवन एल्स, लाइक इंडिया वाज अंडर डोमिनियन रूल बाय द British. Very good. And that situation was prevailed till 1947, 14 अगस्त. तो ये है कि आज़ादी तो मिली है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके साथ जो है ब्रिटिश एम्पायर का कुछ सेमी इंडिपेंडेंस ही मिली, पूर्ण आज़ादी नहीं मिली. ठीक है, पूर्ण स्वराज, हैव यू हर्ड दैट टर्म, पूर्ण स्वराज? नारा दिया था हिस्ट्री में ना 1930 में. हाँ, तो वो अलग है, ये अलग है. So describe semi-independent countries such as Canada, Australia and New Zealand which were granted a large degree of self-governance while still remaining under the authority of the British Crown. तो जैसे इंडिया था ब्रिटिश के अंडर में 1947, 14-15 अगस्त 15 को पूर्ण आज़ादी आपको मिल गई. दूसरा टर्म है इसमें प्रोटेक्टिव स्टेट. प्रोटेक्टिव यानी हिंदी में कहते हैं संरक्षणात्मक. प्रोटेक्टिव याद रखिए. तो प्रोटेक्टिव स्टेट इज ए कंट्री दैट हैज इंटर्ड इनटू ट्रीटी विथ अ स्ट्रॉन्गर नेशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन. इन दिस अरेंजमेंट द प्रोटेक्टिव स्टेट मेंटेन्स इट्स इंटरनल सोवरेनिटी एंड कंट्रोल ओवर इट्स ओन अफेयर्स. इंटरनल सोवरेनिटी होती है मतलब आंतरिक संप्रभुता होती है, बट दे आर
taking support from the other country in the context of external aggression. इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन बाहरी आक्रमण के लिए वो जो है दूसरे के साथ समझौता करके रखते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव स्टेट. बट रिलाइज ऑन द स्ट्रॉन्गर नेशन फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी. क्लियर है? द स्ट्रॉन्गर नेशन इन टर्न गेन सर्टेन प्रिविलेज सच एज एक्सेस टू द प्रोटेक्टिव स्टेट्स मार्केट्स और मिलिट्री बेस. क्लियर है? आजाद हैं, सॉवरेन है, सब कुछ है, लेकिन they are dependent for the external security, military security, defense security from the others. दूसरे देश के ऊपर आश्रित हैं, उनको बोलते हैं प्रोटेक्टिव स्टेट. थर्ड इज कॉलोनियल. ये क्या होता है? कॉलोनियल स्टेट इज ए कंट्री दैट इज कंट्रोल्ड एंड गवर्न बाय ए फॉरेन पावर, यूजुअली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग इट्स रिसोर्सेज और एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल एंड economic dominance over the population. Colonial states are characterized by a lack of political and economic freedom for the indigenous people, with power concentrated in the hands of the colonial rulers. जैसे ब्रिटेन का हम लोग उपनिवेश रहे, बहुत सालों तक रहे ना. हाँ, वेरी गुड, 200 ईयर्स. तो दैट सिचुएशन एक तरीके से सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं दैट इज द गुलामी. ठीक है ना? गुड. तो गुलामी क्या है, कॉलोनियल क्या है, मतलब गुलामी, और प्रोटेक्टिव क्या है, समझ गए, वो दूसरे पर निर्भर रहता है. और पहला डोमिनियन, वो क्लियर हो गया. वेरी गुड. लास्ट सोवरेन स्टेट. इसके बारे में तो कहने का यू नो बेटर देन मी. व्हाट इज द सोवरेन? सोवरेन मीन्स नथिंग कैन बी इंटरफियर इन माई इंटरनल एक्सटर्नल मैटर. आई एम द सोवरेन, आई एम द ब्रह्मा, आई एम विष्णु, आई एम महेश, आई एम लॉर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटीज ऑफ my country. Very good. So that India is a sovereign state. संप्रभु राज्य है. संप्रभु मीन्स, एक का शब्द ध्यान रखिएगा, ये अक्सर आता है, कभी कभी घुमा के पूछेगा कि हाउ फार जुडिशियल मैकेनिज्म इन इंडिया इज ए सोवरेन, है ना. हाउ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट इज सोवरेन टू मेक द लॉ. तो सोवरेन मीन्स संप्रभुता, संप्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी आई एम नॉट गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स. मेरे ऊपर कोई कंट्रोल किसी का नहीं है, मैं अपना कंट्रोलर खुद हूं. मैं ही सब कुछ हूं. ठीक है? ये शब्द ध्यान रहे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिराइव होता है दैट व्हिच फॉल्स अंडर सर्किल नंबर 3. मैंने 2 क्वेश्चन बोला कि हाउ लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट लेजिस्लेचर इज सोवरेन टू मेक द लॉ. क्लियर है? लॉ बनाने के लिए कहां तक संप्रभु है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस है ना, तो दैट रेस्ट्रिक्शंस डिमिनिश दैट सोवरेनिटी. क्लियर है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो भी लॉ बनाएगा, क्या बनाएगा, कोई भी लॉ, एनी लॉज इज बीइंग फ्रेम्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर और legislature, either it is a state or center, does not make difference. So that legislature capacity authority is subject to some restrictions. It means that legislature is not sovereign. sovereign कब होता? जब वो जो बनाता as it is लागू होता. बिल्कुल सही कहा, है ना. इन दैट सिचुएशन इट कैन बी सेड लाइक सोवरेन, बट देयर इज लिमिटेशंस ओवर द लेजिस्लेचर. कोई भी कानून ऐसे नहीं बन सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट गेट वायलेटेड बाय मेकिंग दैट लॉ. अदरवाइज जुडिशरी कैन इंटरवीन सुओ मोटो मतलब सेल्फ मोटिवेटेड, है ना, एंड undertakes that law to scrutinize, to review by the method of judicial review, that whether this law is against or contradiction of the constitutional values. क्लियर है? संवैधानिक मूल्यों के प्रतिकूल तो नहीं बना दिया आपने, तो वो देखना काम है. अगर उसने पाया जुडिशरी ने it is the contradiction and contrast of that
feature, constitutional basic feature, then it will get null and void. क्लियर है? और मजे की बात इसमें एक चीज ऐड कर लीजिए कि दैट एक्टिविटीज इज ओनली नॉट कन्फाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट. हाई कोर्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल टू गेट scrutinize, to get judicial review, even the legislature of parliament. मतलब संसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं करता बल्कि उच्च न्यायालय भी करता है. ये आएगा प्री में, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि साहब हाई कोर्ट को पावर नहीं, उसको भी उतना ही पावर है. और जो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वो है, क्लॉजेज है, आर्टिकल्स हैं, इफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और अ स्टेट, इन दैट सिचुएशंस दे विल बी स्क्रूटनाइज ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल फीचर, जुडिशियल रिव्यू, कि वेदर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट गेटिंग डिटेरिएटेड. क्लियर है? कोई भी उसमें अगर काट छांट होता है तो उस स्थिति में उसको नल एंड वॉइड कर सकता है. क्लियर? तो ये हुआ कि लेजिस्लेचर को संप्रभुता